তাহলে কেন আগে বাড়লে না? কেন নিজের লালের মাথা খেতে না? বলে কিভাবে নেবো? আমি তো অনেক চিন্তার অপেক্ষা করছি যে মাথা কেন আমার জন্য তার পাশে ভয় করে। 25 برپا হলো বাকায়দা ফরসে আদা বাকায়দা বিছানো হয়েছে بعد شهادت حسین তাও ইয়াজিদের মাসাইল পায়া হচ্ছে। আজ আমরা মাসাইল পড়ি, আমাদের জমানে না আমরা সেইভাবে সেই বয়ান করতে পারি। কিতাব থেকে মাসাইলের কথা শুনে আপনাদের বয়ান করি, তাই আপনাদের এই অবস্থা হয়। কিন্তু চিন্তা করি যে 70 কদম দূর থেকে তার ভাইকে জমা দিতে পেরেছে যে হুসাইনের আগে আগ্রহ চালানো হচ্ছে। আপনাদের আওয়াজ বোলাদ হচ্ছে না, কিন্তু এই বোলাদ আওয়াজ ইমামে জামানার আর বিশেষ করে খাতুনের জান্নাতের খুব পছন্দ। যখন কেউ হায় হুসাইন বলে কাঁদে, হায় আকবর বলে কাঁদে, হায় কাসিমা বলে কাঁদে, হায় হুসাইন বলে কাঁদে, এই আওয়াজটির উপরে আল্লাহর রহমত কিন্তু নাজিল হয়। আজরকুম আল্লাহ আজিজ। আজ মাসায়েবে আপনারা এইভাবে কোরআন করছেন, সেই জায়নাব মাসায়েব পড়ছে, রাওয়ায়াত বলছে যেসব সাহাবের মায়েদের কোলে বাচ্চা ছিল, কখন তাদের হাত থেকে বাচ্চাগুলো জমিনে পড়ে গিয়েছে তারা নিজেরা বলতে পারলে পাহাড়ি যে তাদের হাত থেকে তাদের বাচ্চারা কখন কোল থেকে পড়ে গিয়েছে। আমি একটু ভালো না সারা দিন ধরে হলো সন্ধ্যা নামলো, জায়নাবের কাফেলা তৈরি দিল, সমস্ত বিবিদের এক এক করে মাহিনের সওয়ার হচ্ছে। আজ কিন্তু সওয়ারি আন্দাজ অন্যরকম। বিবিদের মাথায় চাদর আছে আর বুকের উপরে পর্দার ব্যবস্থা আছে, বসার জন্য মেহদিলও আছে। আজ সে বিবিদের এক এক করে জায়নাব সওয়ার করালেন, জায়নাবের বাবুতে দৌড়ে গেলে আজ বিবিদের সওয়ার করালেন। বিবিরা যাবে, হঠাৎ দেখে একটা মেহদিল খালি, সেই মেহদিলে সওয়ার যে হবে সে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দৌড়ে আসলেন কোথায়? সজ্জাদের কাছে। বেটা সজ্জাদ, তোমার আম্মা রবাকে আমি তো খুঁজে পেলাম না, কারণ তৈরি আছে। তাদের সমস্ত মহিলারা কোন সংসার ছেড়ে এই কাফেলার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আপনি তো একবার যখন বিবি রবাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তাই সজ্জাদকে এসে সেই বললেন, তোদের ভুইয়া আমি জানি আম্মা রবাক কোথায় আছে। নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন বিবি রবাক কোথায়। কেননা সবাই যখন স্বাধীন হয়, কয়েক থেকে রেহাই পায়, সবার তারা থাকে, কিন্তু এ বিবিকে খুঁজে যখন পাওয়া গেল না, তাই সজ্জাদ বলেন, ফুপি আম্মা আমি জানি কোথায় আছে। আজ এরকম আল্লাহ একবার ফুপিকে নিলে, ফুপি আম্মা চলেন আমার সঙ্গে। কায়েদখানার এক অন্ধকার কোনার দিকে এগিয়ে এগোতে চললে কি কানে আওয়াজ আসতে লাগে, এ আমার নাম যে আমি তোমাকে তোমাকে কখনই রেখে এই অন্ধকার কারাগারে যেতে পারে না। এমন সময় দুই কাঁধার দুটি হাত পড়লো, এক ইমামতের এক জায়নাবের দুটি হাত পড়লো। একদিকে আম্মা, অপরদিকে ভাবি বলে আওয়াজ দিলেন, কাফেলা তৈরি আছে, আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবে, চলো। বাস এই মা
এক বেদনা ভরা কলিজা ফাটা জায়নাব কিভাবে সহ্য করেছে আমি জানি না। বলতে একটি কথা বলবেন বিবি, কোথায় যাবো? আপনার কেউ আছে মদিনায় অপেক্ষা করছে? আব্দুল্লাহ বিবি জাইনাবের স্বামী, উনি মদিনায় ছিলেন। বলছে বিবি আপনার জন্য কেউ অপেক্ষা করছে, আমাকে এতটুকু বলেন আমার কে আছে? আমার সৈয়দ তাজ হোসেন কারবালার শরীফ, আমার কোলের পুরাজগা। কারবালার শরীফ এক چلے تھے جب یہ مدینے سے تو بھرا گھر تھا اب آج عابدیں بیمار ہماری ہے
زینب کلثوم کی ہماری ہے جو کربلا میں لٹے ان کی یہ سواری ہے رباب زینب کلثوم کی ہماری ہے جو کربلا میں لٹے ان کی یہ سواری ہے رباب زینب کلثوم کی ہماری ہے چلے تھے جب یہ مدینے سے تو برابر تھا اب آج عابد بیمار ہماری ہے جو کربلا میں لٹے ان کی یہ سواری ہے رباب زینب کلثوم کی ہماری ہے جو کربلا میں لٹے ان کی یہ سواری ہے رباب زینب کلثوم کی ہماری ہے
কলম নিয়ে এগিয়ে চলে আসছেন আপনারা। لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا زينب لبيك يا زينب لبيك يا زينب لبيك يا زهراء لبيك يا زهراء لبيك يا زهراء আজিজক আলম নিয়ে আমরা এগিয়ে আসুন। আমারই মাঝখানে থাকবে, তার পিছনে আমার ব্রাদার মা বোনেরা থাকবেন। আমাদের প্রথম মজলিস সেখানে হবে। মজলিস পড়বেন হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন জনাব হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন জনাব সৈয়দ জাকি হাসান সাহেব উর্দুতে মজলিস পড়বেন এখানে। আমি প্রত্যেক হাজরাতকে বলবো আপনারা এগিয়ে আসুন, আপনারা এগিয়ে আসুন। পিছনে আমারই থাকবে এবং তার পিছনে আমার হাজরাতার মা বোনেরা থাকবেন। সফরে কারবালা আমাদের শুরু হচ্ছে, আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন। এখানে প্রথম মজলিস হবে আমাদের। মজলিস পড়বেন হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন জনাব সৈয়দ জাকি হাসান সাহেব। আমি ওনাকে অনুরোধ করবো আপনি তো এগিয়ে আসুন। तमाम मोमिनीनদের বলছি, আপনারা আজাদারদের বলছি আপনারা এগিয়ে আসুন। আলম একটু এগিয়ে নিয়ে যাও। আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন। প্রথম মজলিস হবে। মজলিস পড়বেন হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন জনাব সৈয়দ জাকি হাসান সাহেব এবং দ্বিতীয় মজলিস ইনশাআল্লাহ আমরা 16 দোকান মোড়ে অনুষ্ঠিত করব। মজলিস পড়বেন জাকির আলবাব জনাব সৈয়দ শাহিদ ইমাম সাহেব। বাংলায় মজলিস পড়বেন ইনশাআল্লাহ। ওখানে নওখানি হবে, এখানেও নওখানি হবে ইনশাআল্লাহ। अंजुमन गुलामान मासूमीन से गुजारिश है आप लोग सामने आ जाएं। ये मजलिस के बाद नवाखानी करना है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बावाज़ बुलंद सलावत। আপনারা সবাই যে যার জায়গায় বসুন। মজলিস আমরা শুরু করছি ইনশাআল্লাহ। প্রথম মজলিস হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন জনাব সৈয়দ জাকি হাসান সাহেব এবং এখানে নওখানি করবেন अंजुमन गुलामान मासूमीन मटिया पुलिस कोलकाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व रहमतिल लिल आलमीन व मौलाना व सय्यदना अबुल कासिम मुहम्मद الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
इन्नल हुसैन मिसबाहुल खुदा व सफीनतुन निजात। अज़ीज़ान मुहतरम, सरवर कायनात ने इरशाद फरमाया, हुसैन चिराग हिदायत है और कश्ती निजात है। जो हुसैन से मुंसलिक हो गया, जिसने दामन हुसैन को थाम लिया, वो कामयाब हो गया, और जिसने हुसैन को छोड़ा उसने दुनिया और आखिरत अपनी दोनों बर्बाद कर ली। कौन हुसैन? वो हुसैन कि जब दुनिया में विलादत हुई थी तो परवरदिगार आलम ने 1 अरब फरिश्तों को भेजा था दर ज़हरा पर कि जाओ और आज ज़हरा को मुबारकबादी दो। वो हुसैन जो पुश्ते रसूल पे सवार हुआ करता था, वो हुसैन जो रसूल की ज़बान चूसा करता था, वो हुसैन जो रसूल की जुल्फ़े पकड़कर मस्जिद में जाया करता था, वो हुसैन को मदीने में चैन से रहने न दिया। नाना का मदीना हुसैन छोड़ रहे हैं, मदीने में कोहराम मचा है, बनी हाशिम के महल्ले में सन्नाटा छा रहा है। आज बनी हाशिम मदीना छोड़ रहे हैं। हाँ, वो वक्त भी आया कि सन 61 हिजरी रोज़े आशूर हुसैन करबला के मैदान में हैं। सुबह से लेकर असर तक एक एक आकर इजाजत ले रहा है और अपने आप को हुसैन पर कुर्बान कर रहा है। अब वो वक्त आया कि अब खैमे में कोई नहीं बचा। हुसैन ने आवाज दी, हल मिन नासर यंसुरना हल मिन मुगीस युगीसुना। और रवायतें बताती हैं कि हवाले से अली असगर ने अपने को गिरा दिया, जनाब ज़ैनब ने फिज़्ज़त का फिज़्ज़ा मेरे माजाए को बुला कर लाओ। हाँ अजीजों, वो वक्त भी आ गया कि अब हुसैन यको तन्हा है, अब कोई नहीं बचा। आखिरी अलविदा के लिए कि मर्तबा खैमे सईद सज्जाद में आए कि बेटा अब मैं जा रहा हूँ। इमाम सज्जाद ने पूछा, बाबा मेरा चचा अब्बास कहाँ है? कद कोतेला, अब्बास शहीद हो गए। कि बाबा मेरा भैया अली अकबर कहाँ है? कद कोतेला, अकबर शहीद हो गए। बाबा मेरा कासिम कहाँ है? कद कोतेला, शहीद हो गए। कबल इसके के सैयद सज्जाद कुछ और सवाल करते, इमाम ने कहा, सज्जाद बस इतना समझ लो, मर्दों में मेरे और तुम्हारे अलावा अब कोई नहीं बचा है। हुसैन ने इसलिए पूरा मुख्तसर बता दिया कि कहीं सज्जाद ये ना पूछ ले कि मेरा भैया असगर कहाँ है। अल्लाहु अकबर। और जब इतना सुना तो एक मतलब सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा मेरी तलवार लेकर आइए और मेरा असा लेकर आइए। हुसैन ने कहा, सज्जाद ये असा और तलवार क्या करोगे? कि बाबा एक हाथ से तलवार पकड़ूंगा, एक हाथ से असा का सहारा लूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुसैन रुखसत हुए तो जनाब फिज़्ज़त ने कहा, मेरे आका हम बीवियां चाहती हैं कि हम 2 सफ तैयार कर ले, आप सफों के दरमियान से गुजर जाए। हुसैन आखिरी रुखसत ले रहे हैं, बीवियों के दरमियान से गुजरे, और जब बीवियों के दरमियान से गुजर चुके तो नन्ही सकीना आई। सुन सकते हैं चीजों, बड़ा सख्त जुमला है। नन्ही सकीना आई, का बाबा मेरी एक ख्वाहिश, एक सवाल है। तो बेटी क्या बात है? क्या बात है बाबा, जरा बैठ जाइए। हुसैन करबला की जमीन पर बैठ गए। नन्ही सकीना ने एक नन्हा सा सवाल किया, बाबा आपने सबको सबका हिस्सा दे दिया, मेरा हिस्सा कहाँ है? हुसैन ने अपने बेटी सकीना कौन सा हिस्सा किसको दिया? कि बाबा अकबर का हिस्सा दे दिया, अकबर मैदान में शहीद हो गए। बाबा चचा अब्बास का हिस्सा दे दिया, चचा अब्बास शहीद हो गए। बाबा कासिम का हिस्सा दे दिया, कासिम शहीद हो गए। बाबा मेरे हिस्से में क्या है? मेरे हिस्से में क्या है? मेरा हिस्सा कहाँ है? एक मर्तबा इमाम हुसैन ने करबला की मट्टी उठाई और चेहरे सकीना पर मलिया, बाल पर डाला, बेटी तेरे हिस्से में करबला की मट्टी है, तेरे हिस्से में करबला की खाक है। ए बेटी तेरे हिस्से में शिर के तमाचे होंगे, ए बेटी हम तेरे हिस्से में अरे शिमर के ताजियाने होंगे, तेरे दामन में आग लगेगी। अल्लाहु अकबर। एक पुत्र जब सकीना ने कहा, बाबा एक आखिरी ख्वाहिश है। कहा बेटी क्या ख्वाहिश है बताओ? जब सकीना ने कहा, बाबा एक बार अपने सीने पे मुझे सुना, एक बार मुझे अपने सीने पे सुना दी। अजीजों हमारी की इजाजत करने आए हैं ना, जनाब रबाब की हमारी नजर आ रही है, लेकिन जब रबाब की गोद खाली हो चुकी है, अब रबाब की गोद में अली असगर भी नहीं
सकीना भी नहीं है। और एक मर्तबा जैसे ही इमाम हुसैन से सवाल किया, बाबा एक बार सीने पे सुला दिया। अब तारीख बता दी, इमाम हुसैन करबला की जमीन पर लेट गए, का सकीना आओ मेरे सीने पे लेट जाओ। सकीना सीने पे लेट गए, एक मर्तबा दस्ते शफकत फेरा, बाबा हुसैन ने सकीना ये आखिरी बार तू मेरे सीने पे सो रही है, अब इसके बाद अपनी माँ से जिद मत करना, तेरी माँ जहाँ कहे वहीं सो जाता। ए बेटी सकीना, मेरे बाप अपने बाबा का सीना तलाश न करना, अब तुझे तेरे बाबा का सीना मैसर न होगा, तेरी माँ तुझे जहाँ कहे वहीं पर सो जाना। अरे हुसैन सकीना से रुखसत हुए। अल्लाह अकबर। अब तारीख बताती है कि हुसैन मक्तल में है। हाँ, उस रवायत को भी सुन ले कि जब अली अकबर मैदान मक्तल में गए, आवाज दिया अलई का मिन्नी अस्सलाम, बाबा मेरा सलाम कबूल हो। और हुसैन तारीख बताती 70 मरतबा जमीन पर गिरे हैं और जमीन से उठे। वो हुसैन जो सुबह आशूर एक जवान की तरह था, असर आशूर घुटनियों चल रहा था करबला के मैदान में, आवाज दे रहा था आईना अकबर, आईना अकबर, मेरा अकबर तुम कहाँ हो, मेरा अकबर तुम कहाँ हो। और जब अली अकबर के जिस्म के करीब पहुंचे हैं, उसी वक्त एक कासिद मदीने से आया, और कासिद ने आकर मदीने से आकर ये पूछा कि हुसैन कहाँ है। जवाब दिया कि मक्तल में जाओ, लाशों के दरमियान जो शख्स नजर आ रहा है वही हुसैन। एक मतलब कासिद आया मक्तल में, लाशें चारों तरफ बिखरी हुई है, एक जवान के पास हुसैन बैठे हुए हैं। एक मतलब कासिद ने कहा क्या आप हुसैन हैं? कहा मैं हुसैन। का मुझे तो नहीं लगता आप हुसैन। का क्यों? का आपकी बेटी सुगरा ने जो निशानियां बताई थी वो निशानियां नजर नहीं आ रही। का बताओ मेरी बेटी ने क्या निशानी बताई थी? का आपकी बेटी सुगरा ने यह कहा था कि मेरे बाबा को पहचानना हो तो ऐसे पहचान लेना कि मेरा बाबा मसनद पे बैठा हुआ होगा, दाहिनी तरफ मेरा चचा अब्बास होगा, बाई तरफ मेरा भैया अली अकबर होगा। अरे अब तो अब्बास भी नजर नहीं आ रहे हैं, अकबर भी नजर नहीं आ रहे हैं। हुसैन ने पूछा कासिद ये बताओ मेरी बेटी सुगरा ने और क्या कहा है, और क्या निशानी बताई है? एक बार कासिद ने कहा आपकी बेटी सुगरा ने कहा है मेरे बाबा को पहचानना हो तो ऐसे पहचान लेना। अरे जुल्फे सियाह है, रीश सियाह है, लेकिन आपकी जुल्फे सियाह नजर नहीं आ रही है, सफेद हो चुकी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमें हुसैन ने का खत कहाँ है? कासिद ने खत आगे बढ़ाया, हुसैन ने खत को बोसा दिया, आंखों से लगाया, खोल कर पढ़ा, उसमें लिखा था भैया बाबा मेरा भैया अकबर कब आएगा मुझे लेने के लिए। अल्लाह अकबर, साहब औलाद का मजमा है, जवान बेटे की लाश रखी हुई है, हुसैन सामने बैठे हैं। एक मर्तबा कासिद का खत पढ़कर इमाम हुसैन ने खत को अली अकबर के सीने पर रखा और तारीख बता दी जैसी खत रखा लाश करबला की जमीन पर तड़पने लगी। हुसैन ने चंद लम्हे इंतजार किया और उसके बाद खत को लिफाफे को दोबारा उठाकर कासिद को दिया, कासिद ले जाओ इसे जाकर सुगरा को दे देना। एक बार कासिद ने कहा आका आपने तो खत का जवाब ही नहीं दिया। का कासिद जाकर मेरी बेटी सुगरा को दे देना, सुगरा समझ जाएगी। का कैसे समझेगी? का मैंने जो लिफाफा दिया है अरे जवान अकबर का खून उसमें लगा है, अरे सुगरा देख के समझ जाएगी कि मेरा भैया अकबर नहीं रहा। हाँ अजीजों, ये बीवियां मदीने से आई थी बड़ी शान और शौकत से, अब जब करबला से निकल रही है, ना अकबर है, ना कासिम है, ना मोहम्मद है, ना अब्बास है। ये काफले को लूट लिया गया, असीर कर लिया गया, तमाम मालो असबाब लूट लिए गए। काफला करबला से निकला, कूफा और शाम की मनाजिल को तय करते हुए जिंदान शाम में पहुंचा। जो मसाइल जिंदान शाम में अहले बैत ने बर्दाश्त किए हैं आप सुनते हुए आ रहे हैं, बस उस लम्हे को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि तारीख बताती है जब रिहाई का ऐलान हुआ कि अहले हरम को रिहा किया जा रहा है, बशीर को हमराह किया, बशीर काफले के साथ है। एक मतबा जनाब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से कहा बेटा सज्जाद मैं अपने भाई का चेहलुम मनाना चाहती हूँ, काफले को करबला की तरफ से लेकर चलो। काफला करबला की तरफ पहुंचा। हाँ तारीख बताती एक एक बीबी महमिल से उतरी है और अपने अपने वारिस
उसकी कब्र पर गई, लेकिन तारीख बताती है कि जनाब ज़ैनब अपने को महमिल से उतार ना पाई, बल्कि अपने को महमिल से गिरा दिया और लौटते हुए अपने माजाए की कब्र पहुंची। ए मेरे माजाए, तेरी दुखियारी बहन ज़ैनब आ गई। ए मेरे माजाए, तेरी अमानत कैद खाने में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाब सैयद सज्जाद एक एक कब्र का तारुफ करा रहे हैं। फूफी अम्मा, ये मेरे भैया अकबर की कब्र है, ये कासिम की कब्र है, ये औन मोहम्मद की कब्र है, ये हबीब की कब्र है, ये हुर की कब्र है। एक एक कब्र की निशानदही कर रहे हैं। जब कब्र की निशानदही हर कर चुके एक मरतबा जनाब सैयद सज्जाद ने फूफी अम्मा अब आगे चलिए, एक चचा की कब्र की निशानदही करें। एक मरतबा जनाब ज़ैनब के बाजू को थामा और अपने चचा की कब्र के पास लेकर आए और लाकर कहा, फूफी अम्मा, ये मेरे चचा अब्बास की कब्र है। अब तारीख बताती हूँ। ज़ैनब बैठ गई। कहा, सज्जाद क्या कह रहे हो? ये मेरा भैया अब्बास की कब्र नहीं हो सकती। कहा, फूफी अम्मा, ये चचा की कब्र है। कहा, सज्जाद ऐसा ना कहो, ये छोटी सी कब्र है। मेरा अब्बास अरे लहीम शहीम था, ये किसी और की कब्र है। चलो सज्जाद का, ए फूफी अम्मा, अरे चचा की लाश को पामाल कर दिया गया था, मैंने अपने हाथों जज़ाकुमुल्लाहु खैरुल जज़ा। आज़ीज़ो, ज़ैनब करबला के मैदान में एक एक कब्र से लिपट कर रोई, लेकिन औन मोहम्मद की कब्र से नहीं लिपटी। तो मैं औन मोहम्मद का मातम क्यों करूंगी? मैं तो उसका मातम करूंगी जिसकी माँ नहीं है। मैं तो उसका मातम करूंगी जिसकी दुखियारी माँ फातिमा नहीं है। मैं उसका मातम करूंगी। आज जो काफिला करबला से निकला, अब मदीने की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही मदीने के दरवाजे में पहुंचा है, जनाब उम्मे कुलसूम ने आवाज दी। उम्मे कुलसूम ने आवाज दी, सज्जाद, मदीने में ऐलान करवा दो कि हमारा काफिला आया है। बशीर मदीने में दाखिल हुआ और ऐलान कर रहा है, ए मदीने वाले सुनो, हुसैन का लुटा हुआ काफिला आ गया। ए मदीने वाले सुनो, अरे रबाब आई है, गोद खाली है। ए मदीने वाले सुनो, अरे उम्मे परवा आई है, कासिम नहीं है। ए मदीने वाले, अरे ज़ैनब आई है, औन मोहम्मद नहीं है। अब बशीर ऐलान करता हुआ आगे बढ़ रहा है। जैसी दरवाजे मदीना पर अरे काफिला पहुंचा, उम्मे कुलसूम ने मर्सिया पढ़ा, मदीना तो जद्दना ला तकबलीना। ए मेरे नाना के मदीने, अरे मेरे आने को कबूल न करना। ए मेरे नाना के मदीने, अरे जब हम यहाँ से गए थे गोदियां आबाद थी, सरों पे साया था। ए मेरे नाना के मदीने, अरे जब आए हैं गोदियां उजाड़ चुकी है, सरों पे साया नहीं है। मर्सिया पढ़ा, अब मर्सिया पढ़ने के बाद काफिला मदीने में दाखिल हुआ। अजीजों, आखिरी जुमला है, तारीख बताती है कि काफिला जब मदीने दाखिल हुआ, एक एक जवान मदीने का आकर पूछ रहा है बशीर से, बशीर ये बता मेरे बचपन का दोस्त अकबर कहाँ है? बशीर जवाब दे रहा, अकबर शहीद हो गए। मेरे बचपन का दोस्त कासिम कहाँ है? कासिम शहीद हो गए। औन मोहम्मद कहाँ है? औन मोहम्मद शहीद हो गए। अब ये बशीर ऐलान करते हुए आगे बढ़ रहा है। क्या देखा? एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, करीब आया और बशीर की अबा को पकड़कर बार बार खींच रहा है। एक मतलब बशीर ने निगाह की, क्या देखा? एक छोटा सा बच्चा है, अबा को खींच के कहा, बेटा क्या बात है? उस बच्चे ने कहा, बशीर ये बता, तू जो अलम लिया हुआ है ना, ये मेरे बाबा का अलम है, मेरा बाबा कहाँ है? अरे बशीर ने, तेरा बाबा अरे करबला के मैदान में अरे हाथों को कलम करवा कर शहीद हो गया। अभी बशीर ने जवाब दिया ही था। एक मरतबा देखा बशीर ने, एक ज़ईफ़ा है, असा के सहारे मजमे को चीरते हुए करीब आए। का बशीर क्या ऐलान कर रहा है? का हुसैन शहीद हो गए। का कौन हुसैन? का रसूल का नवासा हुसैन। का रसूल का नवासा हुसैन कैसे सही हो सकता है? मैं नहीं मान सकती, मैं यकीन नहीं कर सकती कि हुसैन शहीद है। का नहीं भी हुसैन शहीद हो गए, हुसैन कब्र कर दिया। तो कैसे मैं यकीन कर लूं कि जिसका अब्बास जैसा भाई मौजूद हो वो हुसैन कत्ल हो जाए? मैं अब्बास को नहीं बख्शूंगी। एक बार इतना कहना था, बशीर ने बीबी ऐसा न कहे, अरे अब्बास बाजों को कलम करवा कर अरे पहले कत्ल हुआ हुसैन, बाद में एक बताओ उम्मुल बनीन ने जन्नतुल बकी का रुक गया। ए बीबी, अरे मेरे हदिये का कबूल फरमाए, मेरा अब्बास शहीद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
तड़प के बोलिए ज़ैनब वतन को जाती हूँ, तड़प के बोलिए ज़ैनब वतन को जाती हूँ, तड़प के बोलिए ज़ैनब वतन को जाती हूँ, तड़प के बोलिए ज़ैनब वतन को जाती हूँ। नहीं है कासिम अकबर वतन को जाती हूँ, तड़प के बोलिए ज़ैनब वतन को जाती हूँ, तड़प के बोलिए ज़ैनब वतन को जाती हूँ, तड़प के बोलिए ज़ैनब वतन को जाती हूँ। चली थी घर से मेरे साथ था बड़ा कुनबा, ये आज वक्त कयामत है रह गई तन्हा, सितम की धूप थी हर जा नहीं कोई साया, हुजूम शाम के लश्कर में सानिए ज़हरा, सुनानी अपनी सुना कर वतन को जाती हूँ, तड़प के बोलिए ज़ैनब वतन को जाती हूँ, तड़प के बोलिए ज़ैनब वतन को जाती हूँ। अज़ियतों का सफर तब शुरू हुआ भाई, चला जो 11 मुहर्रम को काफिला भाई, कहीं पे हाथ बंधे थे कहीं गला भाई, सितम की हद थी तमाओं का सर खुला भाई, दिखा के शाम का मंजर वतन को जाती हूँ, तड़प के बोलिए ज़ैनब वतन को जाती हूँ, तड़प के बोलिए ज़ैनब वतन को जाती हूँ। इसीलिए मेरे भाई का सर गिरा होगा, बहन को गैरों के मजमे में देखता होगा, बुलंद नेज़े पे जो इब्ने मुर्तज़ा होगा, वो खुद को इसलिए बेबस समझ रहा होगा, जो उस पे गुजरी बता कर वतन को जाती हूँ, तड़प के बोलिए ज़ैनब वतन को जाती हूँ, तड़प के बोलिए ज़ैनब वतन को जाती हूँ। गरीब भाई की बहना गरीब हो के चली, लुटा के सारा घराना गरीब हो के चली, सफर है सूए मदीना गरीब हो के चली, नहीं है साथ सकीना गरीब हो के चली, तुम्हें मैं सौंप के असगर वतन को जाती हूँ, तड़प के बोलिए ज़ैनब वतन को जाती हूँ, तड़प के बोलिए ज़ैनब वतन को जाती हूँ। कहीं पे जौन का सर है कहीं ज़ुहैर का सर, कहीं पे लाशे असगर है और कहीं अकबर, इसी जगह पे खड़ी देखती थी सब मंजर, कि कैसे सोया बरादर मेरा तराई पर, यूं करबला को सजा कर वतन को जाती हूँ, तड़प के बोलिए ज़ैनब वतन को जाती हूँ, तड़प के बोलिए ज़ैनब वतन को जाती हूँ। ये जानते हो रस्म हाथ में बंधी कैसे, रिज़ाए खालिक अकबर बहम चली कैसे, मची थी शाम के मकतल में खलबली कैसे, ईद वक्त को डाली थी हर कड़ी कैसे, जफा को कैदी बना कर वतन को जाती हूँ, तड़प के बोलिए ज़ैनब वतन को जाती हूँ, तड़प के बोलिए ज़ैनब वतन को जाती हूँ।
अज़ाए शह में हमेशा रहा है महवे गम, लिखा है नौह फरज़ तक ने आके है पुरनम, पढ़ेंगे मीसम गुलजार हश्र में पैहम, जज़ा मिलेगी इसी के अवज़ उन्हें उस दम, खुदा को राज़ी करा कर वतन को जाती हूँ, तड़प के बोलिए ज़ैनब, वतन को जाती हूँ, तड़प के बोलिए ज़ैनब, वतन को जाती हूँ। अज़ियतों का सफ़र तब शुरू हुआ भाई, चला जो 11 मुहर्रम को काफ़िला भाई। পেছনে এসো, লেডিস সব পিছনে আসো, পেছনে এসো, উটির পিছনে, ওর আগে যাবে না, পেছনে এসো, পেছনে যাও।